Very good morning once again. We welcome you all on behalf of Regional College of Engineering, Research and Technology on the auspicious occasion of induction ceremony of new students of BTech and Polytechnic. Today is a very special day, not only for you people, but for us also, because we look forward to meet new members of the Chika family. But before we go ahead, as per the college tradition, I would request all the members sitting on the dais to please proceed for lighting the lamp ceremony and to offer flowers and garlands to Goddess Saraswati and Lord Ganesha. So I would request Chairman Sir, Shri Prem Surana ji, Vice Chairman Sir, Mr. Anshu Surana, Director Sir, Shri Kapil Chandra Sir, Principal Sir, Dr. R.S. Tiwari, Principal Pharmacy and Principal Polytechnic, Mr. Tarachan, HOD Applied Science, Mr. Ajay Jain, to please proceed for lighting the lamp and offering of flowers to God. Visited our campus and media loved to cover him. It was followed by a 2-day national workshop on latex, the language of scientific dissertation, writing technically supported by RTU Kota. The visit of Ankit Fadia, the ethical hacker, was a workshop that students learned a lot from that. A mega job fair was organized in collaboration with Ministry of Employment Exchange, Government of Rajasthan, where students got an opportunity to meet several companies at one platform. The visit of Salman Khan would be memorable forever in everybody's hearts. The event enjoyed the wide media coverage. The visit of Dilip Kumar, Abhijit Sawant, Tushar Kapoor, Kulraj Randhawa are few, and it's like a cherries on the cake. Besides these few of several special events which I have mentioned, the regular features of college are Technical Fest, Freshers, an event which has become a national level event. It is organized for the students, by the students and of the students. Placement drives, it's a regular feature of the college that companies are coming and we have wonderful placement of students in different corporate sector. A Saturday activity, which is a talent hunt activity specially organized for first-year students. Summer trainings organized by different departments. Industrial tour, this year it's going to be Goa. Engineers Day,
celebrated by the whole engineering fraternity as a dedication to Vishweshwar, Dr. Vishweshwar Rai. 15th August, 26th January and celebrations of all festivals. Besides the biggest events organized by students' freshers, there are Palchin, Hostel Party, Freshers, Teachers' Day. To develop the Teachers' Day, all the events are here organized to develop the managing capabilities and organizing skills of students. So dear students, ignite the passion right now. Motivate yourself from this moment and feel proud that you are part of a wonderful college, that is Deepshikha Group of Colleges. And I welcome you once again on behalf of management, senior faculties, faculties and senior students. Thank you. Our director, sir, Shri Kabul Chandra, sir, to please come on dais and please उनसे अच्छा कॉलेज के बारे में और कौन बताएगा, तो आज आप उनसे रूबरू होंगे. So please give a big hand of applause and I would like to invite director sir to come on. Honorable Chairman Sir, Principal Sir, Principal Pharmacy, dear faculty members, staff members and students. आज हमारे नए सेशन 2013-14 का आज पहला दिन है और ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चारों के लिए पहला दिन है और हमने अपना नया सेशन आज से शुरू किया है. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक के हैं या बीटेक के हैं उनके लिए कॉलेज का ही पहला दिन है, इसलिए हम सब उनका स्वागत करते हैं इस कॉलेज में और शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल बने और वो अपने जिस इच्छा से इस पढ़ने यहाँ आए हैं वो उन्हें, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा. दूसरा फायदा उपस्थित रहने का तो ज्ञान तो मिलता ही है, ये है कि जब आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जाते हैं थ्योरी के अंदर या प्रैक्टिकल मार्क्स जाते हैं तो उसमें 30% कंट्रीब्यूशन आपका नंबरों अटेंडेंस का रहता है. इसलिए अगर आप रेगुलर हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आप एग्जाम में भी बैठेंगे और नंबरों में भी आपको उसका लाभ मिलेगा. दूसरा, लाइब्रेरी की किताबें आपको जो मिलती हैं वो 15 दिन के लिए मिलती हैं. एक बार में 2 किताब शायद मिलती हैं 15 दिन. मेरा कहना यह है कि आप डिले ना करें उसको लौटाने में, नहीं तो फाइन लगता है. 15 दिन के बाद लौटा दें और दूसरी किताब इशू करा लें. अगर वही किताब इशू करानी है तो लौटा दें और अगर उसका कोई दूसरा स्टूडेंट मांग नहीं रहा है तो आपको दोबारा भी इशू हो सकती है. लेकिन अगर दूसरा कोई मांग रहा है तो प्रेफरेंस पहले उसको दी जाएगी, क्योंकि आप 15 दिन उस किताब को रख चुके होते हैं. इसलिए लाइब्रेरी के रूल्स जो हैं उसको फॉलो करना है. कॉलेज में आपको यूनिफॉर्म में आना है, यूनिफॉर्म कंपलसरी है. बिना यूनिफॉर्म के आएंगे तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे. इसलिए यूनिफॉर्म में आएंगे तो आप ये देखिए यूनिफॉर्म का अपना एक अलग से प्रभाव होता है. आपने देखा डिफेंस सर्विसेज में, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में सर्टेन डिफेंस यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म का एक पर्पस ये होता है कि एक तो पहचान आपकी होगी, दूसरा जब आप अच्छी तरह से यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो आपके अंदर स्मार्टनेस रहती है, एक्टिवनेस रहती है. कॉलेज में जीन्स, टी शर्ट ये अलाउड नहीं है, चप्पल, स्लीपर, ये सैंडल अलाउड नहीं है. आप लेदर शूज़ पहन के आएंगे. 2 दिन आपको यूनिफॉर्म ना पहनने के लिए मिलते हैं तो उस वक्त भी आपको ड्रेस कोड में आना है.
ये नहीं कि आप टी शर्ट बनाए गोल गले की या आप जीन्स पहन के आ गए, चप्पल में आ गए, सैंडल में आ गए, नहीं। ड्रेस कोड होता है तो कमीज पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, ट्राउजर या पैंट पहनेंगे, बेल्ट लगाएंगे और लेदर शूज पहनेंगे। वो अपनी पसंद की आप पहन सकते हैं, यूनिफॉर्म की ना पहनेंगे। तो ये ड्रेस कोड है। तो 2 दिन आप ड्रेस कोड में आएंगे, बाकी 4 दिन आप कॉलेज यूनिफॉर्म में आएंगे। इसके अलावा जो हॉस्टल में लोग बच्चे रहते हैं उसमें हॉस्टल के भी नियम हैं, और रात को 11 से सुबह के 6 बजे तक ये साइलेंट आवर्स होते हैं, उसमें किसी तरह का शोरगुल करना मना है। अगर आपका जन्मदिन भी है तो आप जन्मदिन या तो 11 से पहले ख़त्म कर दें, या अगर आप बच्चे कहते हैं हम तो 12 बजे मनाएंगे, वैसे तो मुझे समझ नहीं आता उसका लॉजिक 12 बजे मनाने का क्या है, क्योंकि आपका जिस समय जन्म हुआ या तो आप उस समय मनाएं या पूरे दिन में कभी मना सकते हैं, डेट वही रहती है। तो रात को 12 बजे मनाने का मुझे कोई पर्पस समझ नहीं आता। सुन रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी में भी उतारने की कोशिश करिएगा। और बहुत अच्छी बात जो सर ने कही कि विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। तो चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, बट अगर विनम्रता का गुण है तो आपको आगे तक ले जाएगा। और इसी से मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे हमारे ग्रुप के चेयरमैन, दीपशिका ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन श्री प्रेम सुराना सर, आकर आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दें। So please put your hands together to welcome Group Chairman Prem Surana sir. दीपशिका ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो लोगो है लगा हुआ दिख रहा, उसमें लिखा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। एक प्रकाश की ओर जाने के लिए, एक रोशनी की ओर जाने के लिए आप लोगों ने यहाँ ज्ञानार्थ प्रवेश लिया। मैं चाहूँगा 3 साल बाद में पॉलिटेक्निक के छात्र, 4 साल बाद में इंजीनियरिंग के छात्र सेकेंड ईयर में प्रवेश लिया है, वो 1-1 साल कम होकर के, और जब यहाँ से प्रस्थान करें तो दिल में सेवा की भावना लिए सेवा प्रस्थान करें। 99% बच्चे अगर रेगुलर रहते हैं तो उनका प्लेसमेंट होगा। जिस जगह भी जाएं, जिस संस्था में भी जाएं, जिस इंस्टीट्यूशन में जाएं, जिस इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ उनका मन उनकी सेवा करके इस ढंग से जीतें कि उनको लगे कि ये हमारे पार्ट एंड पार्शल, हमारी संस्था के, हमारे कॉलेज के, हमारी इंस्टीट्यूशन के, हमारी इंडस्ट्री के हिस्सा है, और वो आपको हटा नहीं सके, अलग नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ वातावरण आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपस में प्यार और प्रेम से पढ़ाई और ज्ञान को प्राप्त करना, बेसिकली जो हमारा बेसिक उद्देश्य है, अंधकार से प्रकाश की ओर। जिस जगह से आप आए हैं हो सकता है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में पहुँचने की बात मिलेगी। आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कॉलेज का नाम रोशन किया, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे हैं, और आप लोग भी इसी ढंग से अपने सीनियर्स को फॉलो करते हुए उनसे भी आगे जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएँ, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है कि आप बहुत आगे बढ़ें, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, हमारा नाम रोशन करें, कॉलेज का नाम रोशन करें, अपना रोशन करें, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। माता पिता गर्व से कह सके कि मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, और उसके नाम से जाने जाएं, आप माता पिता के नाम से नहीं। माता पिता को ये गर्व हो कि आपके नाम से लोग कहें साहब ये बेटा किसका है, बोले साहब ये मेरा बेटा है, उनका सीना गर्व से फूल जाए। और ऐसी ही आप एक परंपरा पैदा करेंगे, ऐसा ही आप कोशिश करेंगे। किसी ढंग की कोई भी कठिनाई हो तो आप हमसे मिलेंगे। हॉस्टल्स या वस्त्र सुविधा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज अधिकतर लड़के एब्सेंट हो जाते हैं। बाहर एक काउंटर बनाया गया है जिसमें जो बच्चे हॉस्टल लेना चाहते हैं वो हॉस्टल में रहें ताकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो सके। और किसी कारण से हॉस्टल में रहना संभव नहीं हो पाई हुए तो आपको बस जो अपनी जो बस है उसके अंदर आपकी टाइमिंग के हिसाब से आप क्लास रेगुलर अटेंड कर पाएंगे, बाकी दूसरी बसों में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें से दोनों में से एक सेवा आप अवश्य लेवें। कॉलेज के बाहर अब जैसे आप बाहर काउंटर निकलेंगे तो ये काउंटर्स आपके बने हुए हैं, उन सब में आप संपर्क करें, ये मेरी कामना रहेगी ताकि आप रेगुलर रहें और पढ़ाई पे जोर दे सकें। धन्यवाद बहुत बहुत। Thank you so much, sir.